Dear students, welcome to the Social Life channel. In this video, we are going to discuss chapter number 5 of class 4th. And the name of the chapter is The Great Indian Desert. From these chapters, we are going to learn about the Great Indian Desert and its location, where it is located, its climate, which type of climate is in this region, vegetations, which type of vegetation is in this region can grow, and the landforms, which type of landforms. Another thing you will learn that the people and which type of dresses they wear, that thing also we are going to learn. Languages, which language they speak, and the festival they celebrate, that thing also we are going to learn from this chapter. Another thing we will learn the role of the tourism in the थर्ड डेजर्ट, मतलब जो विजिटर्स आते हैं बाहर से उनकी क्या रोल है इस डेजर्ट के बारे में, ये सब के बारे में हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चलेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम आस्किंग टू लिसन केयरफुली एंड वॉच द वीडियो, फुल वीडियो, so you will understand about this chapter. Okay, so let us start the class. See, previous chapter we have discussed about the northern plain, and this is the desert, the Great Indian Desert, which is called third desert. Okay, it is located in the west of the northern plain. जो इंडिया की नॉर्थन प्लेन की वेस्ट की तरफ लोकेटेड है ये थॉर डेजर्ट. ओके, और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग, लंबाई में जो है 800 किलोमीटर है, एंड 500 किलोमीटर्स वाइड. ओके, so it's covered the major part of the Rajasthan, our state Rajasthan, which is the largest state according to area in our country. So that major part of the Rajasthan is in third desert. Okay, so the land here is partly rocky, so पत्थर की पथरीली होता है, और सैंडी. ओके, पार्टली सैंडी, कुछ सैंड भी बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो चलो हम समझे इसको किस तरह से, कि कौन सा चीज़ किस तरफ है उसके बारे में थोड़ा ये हमें समझ में आएगा जब मैप के थ्रू हम समझेंगे. ठीक है, सो लुक एट द मैप केयरफुली, सो यू विल अंडरस्टैंड about it. See, this is the desert area, third desert, which is called the Great Indian Desert. Okay, so if you see the desert at the first point, that is Satluj river basin, which is in northeast. Keep in your mind always, we study that time, always top is in the north, and below south, and right side east, and left side west. Map, whenever you want to study a map. So here if you see, so you will get the at the top north and south at the bottom. हमेशा मैप में, मैप जब भी आप पढ़ते हैं, the language of map and direction is very important to read a map. सो एट द टॉप नॉर्थ है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना. नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और ईस्टर्न साइड में. ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, इस यहाँ पे क्या है, सतलुज. देखो, सतलुज रिवर बेसिन. और द साउथ इज सेल्ट मार्स, विच इज नॉन साउथ साइड, इस तरफ जो अपना गुजरात की तरफ जो है. ठीक है, क्या है, रन ऑफ कच्छ. ठीक है, जिसको रन ऑफ कच्छ बोलते हैं. और द साउथ ईस्ट की तरफ, अगर इस तरफ देखेंगे, साउथ ईस्ट की तरफ क्या है कि अरावली रेंजेस है, वहाँ पे अरावली रेंजेस है. एंड द डेजर्ट एक्सट्रीम वेस्ट इन द पाकिस्तान, वेस्ट की तरफ क्या है कि पाकिस्तान तक, इन अप टू द इंदू रिवर, अप टू कहाँ तक, इंदू रिवर बेसिन तक ये डेजर्ट लोकेटेड है. ठीक है, चलो हम थोड़ा क्लाइमेट के बारे में समझे. ठीक है, climate of the desert will understand now. So the desert in the climate of the desert is extreme. During the summer it's extremely hot, the days are very hot and dry in the summer. Okay, and the sun sets, it's become a cooler. जैसे ही sunset होता है, क्या होता है, it's why it's happening, because of the sand heats up quickly in the day. दिन की टाइम पे सैंड जो होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और इट्स कूल डाउन फास्टर एट नाइट. जैसे ही वो
नाइट होता है क्या होता है कि सैंड बहुत जल्दी कूलिंग भी हो जाता है, तो ठंडा होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो नाइट्स आर कूल इन विंटर, डेज आर प्लांटी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं होता है डेज दिन में विंटर में, बट नाइट आर वेरी कोल्ड इन द डेजर्ट। ओके, next we'll discuss the vegetation of the desert. Vegetation, when we talk about the vegetation, which type of plants grow on those area, this type of area, one thing that there is a very little rainfall in the desert. desert में बहुत ही कम बारिश होता है, so no many plants grow in the region. इस तरह के रीजन में कभी भी क्या होता है कि ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं होता, बिकॉज ऑफ द सैंडी सॉयल, एक तो सैंडी सॉयल है एंड लेक ऑफ वाटर, कम कम पानी है, तो पानी के बिना तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकता है। सो यू कैन ओनली सी ए फ्यू स्किटर्ड बुशेस एंड द थ्रोनी सर्फ, कुछ इस तरह का बुशेस मिलते हैं और थ्रोनी सर्व्स मिलते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। सो देयर आर ए फ्यू स्टीम्स ऑफ द स्टीम व्हिच फील ऑफ ओनली व्हेन देयर इज रेन, इस तरह से कुछ छोटा छोटा जो पानी के जो स्टीम्स रहते हैं, तो क्या होता है कि जब बारिश होता है तब होता है। सो देयर इज ए severe shortage of drinking water also in the desert. Mostly it's very difficult to get drinking water, पीने वाला पानी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। so the people who live there, it's very very difficult to get the drinking water. Next we will discuss the landforms of the desert. desert में किस तरह का landforms है। so as the land is dry, जैसे हमें जानते हैं कि यहाँ पे हमेशा सूखा रहता है, एंड देयर इज ए वेरी लिटिल rainfall एंड वेजिटेशन, कम बारिश भी होता है, वेजिटेशन भी कम होता है। द सॉयल इरोजन ड्यू टू द विंड, जब हवा चलते हैं तो क्या होता है कि सॉयल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, एक प्लेस से अलग प्लेस सॉयल इजीली जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। सो द डेजर्ट हैज़ मेनी स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, इस तरह का बहुत छोटा छोटा जो ऊंचा ऊंचा सैंड की हिल हो जाता, हिल की तरह रहता है, जिसको सैंडन्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड दैट? सैंडन्स। सैंडन्स आर फॉर्म्ड व्हेन sand started peeling under any barrier that block of sand landed desert wind, डेजर्ट विंड के साथ जब कहीं एक प्लेस से अलग प्लेस में जाके जमा होता है तो इसको क्या होता है? सैंडन्स बोला जाता है। दीज डेंस डू नॉट रिमेन एट द सेम प्लेस, कभी भी एक प्लेस में नहीं रहता, फिर से किसी और तरीके से अलग तरीके से हवा जब बहती है तो अलग प्लेस में चला जाता है। सो दीज डंस, द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ द डेजर्ट कीप मूविंग द डंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब भी बहुत जोर से हवा बहते हैं तो क्या होता है कि ये बाली एक प्लेस से अलग प्लेस, एक प्लेस से अलग प्लेस ये बालू चले जाते हैं, ठीक है। सो द हॉट विंड्स कैरी ए लॉट ऑफ सैंड्स विद देम, जब बहुत ही ज़्यादा हॉट विंड्स बहते हैं, गर्म हवा चलता है तो क्या होता है कि इट्स कैरी लॉट ऑफ सैंड विद देम, बहुत ज़्यादा सैंड लेके आते हैं साथ में। एंड सर्व द सैंड स्टॉर्म्स, जिसको सैंड स्टॉर्म बोला जाता है, और कॉमन उस प्लेस में सैंड स्टॉर्म वो जो हवा के साथ बालू बहुत ज़्यादा जो सैंड उड़ते हुए आते हैं, सैंड स्टॉर्म बोला जाता है। सो देयर आर सम प्लेसेस इन द डेजर्ट, अगर हम डेजर्ट में देखेंगे कुछ प्लेसेस जो है वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स, मतलब नीचे से पानी निकल के आते हैं सो अप टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। सो डेट प्लांट्स, केकर, बबुल ट्रीज एंड द ग्रासेस ग्रोज इन दिस एरिया, जहाँ पे ये अंडरग्राउंड वाटर निकल आते हैं। सच एरियाज इन द डेजर्ट विच वाटर एंड ग्रीनरी लोकेटेड, इस तरह डेजर्ट में जब भी किसी प्लेस में भी इस तरह का जो दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओसियस बोला जाता है, ओसियस। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस द लाइफ in the desert regions of Rajasthan, means life in the desert regions of Rajasthan, mainly because the desert is located in our Rajasthan only. So the life of the desert areas of Rajasthan is very hard due to the shortage of water, क्योंकि it's very difficult to survive there. So और ये इसका रीजन क्या है सबसे कि लेक ऑफ वाटर, पानी की कमती, ठीक है। एंड द ड्राई सैंडी सॉयल, क्यों? सूखा सैंडी सॉयल है कि जहाँ पे पानी इतना रुकते भी नहीं है। सो एज फ्यू क्रॉप्स कैन ग्रोन
बहुत ही कम क्रॉप्स ग्रो होता है। मैनी पीपल रेयर कैमल्स पालते हैं वहाँ पे, एंड कैटल सच एज सीप एंड गोट, इस तरह का एनिमल पालते हैं क्योंकि कल्टीवेशन इतना ज़्यादा होता नहीं। नेक्स्ट विल डिस्कस दैट इज द पॉपुलेशन। सो द पॉपुलेशन इन डेजर्ट एरिया इज स्मॉल, बहुत ही कम पॉपुलेशन रहता है डेजर्ट में, ठीक है। सो मोस्ट विलेजेस इन डेजर्ट्स कम अप अराउंड प्लेसेस वेयर वाटर इज अवेलेबल। मोस्टली जो विलेजेस बने हैं वो कहाँ पे, जहाँ पे पानी अवेलेबल है, इस तरह प्लेस में गांव बैठे हैं। सो एज ए रिजल्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर देम सेल्फ, क्योंकि क्या इतनी ज़्यादा फूड नहीं मिलता है, एंड देयर कैटल्स में मैनी पीपल कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। क्या करते हैं लोग, एक प्लेस से अलग प्लेस में जाके रहते जाते हैं। सो सच ए पीपल आर कॉल्ड नोम्स, जो नोम्स बोला जाता है, एक प्लेस को रहते हैं फिर उसके किसी कुछ अलग प्लेस में चले जाते हैं, ठीक है ना। ये लोगों को नोम्स बोलते हैं, मतलब एक प्लेस में ये लोग घर बना के रहते नहीं, सेटल लाइफ नहीं जीते हैं, ठीक है। ये सबको नोम्स बोलते हैं। सो द नोम्स ऑफ द थॉट डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारा ऑल्सो, बंजारा भी बोला जाता है इन लोगों को, कि एक प्लेस से अलग प्लेस घूम जाते हैं जिन लोगों को, ठीक है। डेजर्ट प्लेस में जो नोम्स रहते हैं उनको बंजारा बोलते हैं। सो देयर आर वेरी फ्यू सिटीज़ इन द डेजर्ट रीजन। अगर देखते हैं शहर जो है बहुत ही कम है, जैसे कि यहाँ पे जैसलमेर, देन जोधपुर, बीकानेर आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द डेजर्ट एरिया में, ठीक है। So next we will discuss the farming of the desert. Okay, so in areas where water is available, जहाँ पे पानी मिलता है, the millets like ज्वार बाजरा and the wheat are grown, जहाँ पे पानी की अवेलेबल है, इस तरह का क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं। द इंदिरा गांधी कैनल जो है, जो इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलुज रिवर्स, जहाँ से सतलुज रिवर से ये कैनल बनाया गया, प्रोवाइड्स वाटर टू पार्ट्स ऑफ द थॉर डेजर्ट। एक थॉर डेजर्ट के कुछ पार्ट में क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। सो दीज एरिया हैव नाउ बिकम ए ग्रीन एंड द फार्मर्स कैन ग्रो ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि सतलुज रिवर की जो कैनल के थ्रू जो पानी मिलता है, सो इस प्लेस में हम अभी कल्टीवेशन होता है और वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस द sheep in the desert. sheep in the, so camel is the most useful animal in the desert में सबसे जो यूजफुल एनिमल है वो क्या है, कैमल। दैट इट कैन withstand the desert heat, it can be bear the heat of the desert and walk easily on the sand, मतलब सैंड के ऊपर आराम से चल सकते हैं, and live without food and water for several days। बहुत मतलब लंबा टाइम ये जो कैमल होते हैं, क्या होता है कि विदाउट फूड एंड वाटर सर्वाइव करते हैं। सो इट इज़ देयर फॉर कॉल द शीप ऑफ द डेजर्ट, इसीलिए कैमल को क्या बोलते हैं, द शीप ऑफ द डेजर्ट। टुडे मॉडर्न रोड्स लिंक टू इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द डेजर्ट की जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, अभी मॉडर्न रोड बनाया गया, एंड व्हीकल्स रन ऑन देम, बहुत सारे व्हीकल चलते हैं। बट हाउएवर द कैमल स्टिल रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिस रीजन। अभी भी इस रीजन में क्या है कि कैमल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू कैरी लोड्स, कैमल लोड कैरी करते हैं, पुल कार्ड्स पुल करते हैं, पुल प्लाग्स इन द फील्ड, ऑल्सो इट्स मिल्क एंड मीट सर्व एज फूड फॉर द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस द ड्रेसेस, विच काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वेयर। So bright colorful clothes are common among the both men and women in राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो किस तरह से बहुत ब्राइट कलरफुल क्लॉथ्स जो है, ठीक है, बहुत ही कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, कलर मैन एंड वोमेन बोथ, ओके। राजस्थान द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वोमेन घाघरा चोली, ओके, घाघरा चोली पहनते हैं वो लोग, और ओढ़नी कवर द हेड को ओढ़नी से कवर करते हैं। द मैन वेयर धोती कुर्ता एंड द टर्बन, कलरफुल टर्बन, ठीक है। नाउ लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स, विच लैंग्वेज द हिंदी एंड द राजस्थानी आर द मेन लैंग्वेजेस इन द डेजर्ट एरिया। सो द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, गंगर, तीज, इस तरह का फेस्टिवल जो हो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान में और ये डेजर्ट एरिया में, ठीक है।
Next we will discuss tourism. Tourism means the visitors from the different countries come, even our country. So tourism is an important industry इन द स्टेट. उस स्टेट में राजस्थान में टूरिज़्म जो है लोग देखने के लिए जाते हैं, डेजर्ट देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट प्लेस ऑल्सो. सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड की चारों ओर से क्या होता है कि विजिट करने आते हैं. कम टू जसलेम इन राजस्थान ड्यूरिंग द डेजर्ट फेस्टिवल. जब डेजर्ट फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे विजिट करने आते हैं. ओल्ड फोर्ट्स and the historical monuments in Rajasthan are the great attraction for the tourism. मतलब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है ये जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है राजस्थान में, ये देखने के लिए और डेजर्ट की जो लुक लेने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ही विजिटर्स को मतलब इंटरेस्ट लेते हैं लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए. ठीक है. सो दिस वाज द चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड गिव ए लाइक ऑन द वीडियो, and if you have any questions or if you did not understand any point, so you can comment on that, so I will help you through the making another video, or anyhow I will try to make you understand. So please give a thumb. Thank you and have a nice day.